Hello students, today we are going to continue the questions of exercise 2.5, question number 6 or question number 4, 1 by 4a minus 1 by 2b plus 1 whole square. So as we discussed in the previous video that the formula a plus b plus c will be also used here. That's why I am written, we know that a plus b plus c whole square. The formula was a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. This was the formula. By the same formula we will use here. Same formula will be used here. 1 by 4a is a, this is b and this is c. Just put the values. So at the place of a, 1 by 4a square. At the place of b, minus 1 by 2b square. At the place of c, 1 square. So a square plus b square plus c square plus 2ab. That is 2 into, at the place of a it will be 1 by 4a. At the place of b it will be minus 1 by 2b. So 2ab plus 2bc. 2 at the place of b it will be minus 1 by 2b, and at the place of c it is 1. So this is 2bc plus 2ca. 2 into 1 into 1 by 4a. Just see the adjustment. Adjustment is here. This will be cancelled out. 2 to the 4. And this 2, no, 2ab, this 2 and this 2 can be cancelled here, and 2 and 2 to the 4. Now just write, it will be a square by 16, this will be b square by 4, this is 1. Now just see the remaining thing, a by 2, and here ab by 2, sorry, this is a and this is multiplied 2ab. A into b is ab. Minus sign will be there because minus is here. So 2 ab by 4, sorry, 2 to the 4, and then this is minus b, and this one is a by 2. It will be the answer. Okay, just see, you have only to pay your attention here in the calculation, otherwise things are simple. Next question is question number 5, factorize. This is the first one of 5. Same formula will be used here, but this is just opposite to the previous question. 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. So this is the first question. 4x square, 9y square, 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. Okay, use the same formula here. It will be 2x whole square plus 3y whole square, a square, b square plus c square. This a square, b square, c square, then 2ab, 2bc, 2ca. So at the place of 2, a means 2x, b means 3y, 2ab is here plus 2bc, 2 into 3y into 4z, 2ab, 2bc, then 2ca, 2 into c is 4z and a is 2x. This one 2ab, this one is 2ab, this one is 2bc, this one is 2ca. Now see what is going to be happen here. Look, in the question there are 2 minus signs. तो इस माइनस साइन का क्या करेंगे, इसको चेक करना पड़ेगा. इसको चेक करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप ये देखो कि प्लस किस में है. एक्स वाई में प्लस है, 12xy के पहले प्लस है
तो अगर यहाँ पे प्लस है इसका मतलब x भी प्लस में है, y भी प्लस में है, तो माइनस में कौन होगा? z। तो रूल ये है कि आप जहाँ जहाँ z है उसमें माइनस लगा दो, जहाँ जहाँ भी z लिखा है माइनस लगाओ। ऐसा करने से ये हो गया। अब इसके बाद आप सीधे लिख सकते हो 2x + 3y - 4z होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख दो, 2x + 3y - 4z एंड 2x + 3y - 4z। तो सिर्फ फार्मूला पे सेट है। और क्वेश्चन लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, वो भी इसी तरह से है, फिर से समझने की कोशिश करोगे आप। वो है 2x² + y² + 8z² -2√2 xy + 4√2 yz एंड -8xz। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, 2x² + y² + 8z² -2√2 xy + 4√2 yz एंड -8xz। सेम करेंगे। 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 का स्क्वायर रूट होता है √2, तो √2x² होल स्क्वायर, और ये y का होल स्क्वायर। और 8 का होता है 2√2। 2√2 को 2 बार इंटू करोगे, 2√2 और ये z, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 से 8। अब फार्मूले में आइए, प्लस वाला ही फार्मूला लिखना है, माइनस नहीं लिखना है। फार्मूले में आएगा सबसे पहले 2ab, तो 2a के जगह पे √2x, b के जगह पे आप y डालेंगे। अब वो ये हो गया 2ab + 2bc, 2b के जगह पे y और c के जगह पे 2√2z, 2bc + 2ca, 2 × c के जगह पे 2√2z और a के जगह पे √2x। अब देखिए, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि चेक करिए प्लस किस में है। yz में प्लस है, yz प्लस के नंबर में है, माइनस होगा, y में भी नहीं, z में भी नहीं, तो किस में? x में। तो जहाँ जहाँ x है माइनस साइन पुट करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x है माइनस साइन डालिए, और यहाँ भी बस। अब नेक्स्ट लाइन है -√2x + y + 2√2z होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिखना होता है क्योंकि होल स्क्वायर में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। हम ले लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 1 होल क्यूब। होल क्यूब है तो a + b का होल क्यूब का फार्मूला या x + y होल क्यूब फार्मूला एक ही होती है बात। चलिए यूज़ करते हैं। वी नो दैट a + b होल क्यूब फार्मूला 2 तरह से लिख सकते हैं, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो a की जगह पे 2x, 3 फार्मूले से a की जगह पे फिर से 2x स्क्वायर है तो स्क्वायर, और b के जगह पे 1, फिर 3a की जगह पे 2x, b के जगह पे 1 स्क्वायर, और प्लस b³ मतलब 1 का क्यूब। कैलकुलेट करें तो ये आएगा 8x³, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12x²। इसका इंटू करने पे, इनका इंटू करने पे 3 2 6, 6x, और ये 1। तो इस तरह से आप इसके बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हो। हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस तरह से।
7 का फर्स्ट लिया, 99 क्यूब। डायरेक्ट नहीं करना है, इसको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। पहले ले लेंगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब। 100 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो आता है 99। अब फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल क्यूब का। पिछला फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, दोनों सेम है, नो प्रॉब्लम इज देयर। a के जगह पे 100 क्यूब, b के जगह पे 1, b के जगह पे 1 का क्यूब, -3 a के जगह पे 100, b के जगह पे 1, और ये 100 माइनस 1। 100 का क्यूब मतलब इसमें आएगा 3 बार 100 इंटू करेंगे तो 60, 2 4 6, ये 1, ये आ गया 300 और ये हो गया 99। इसका पहले इंटू कर दें तो 99 को अगर हम 3 से इंटू करेंगे तो 99, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 29 और 2 0। अब फिर इसको माइनस कर दो, 29701। इसको माइनस करके देखिए क्या आता है। माइनस करके आएगा 970299, 970299। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन वाला है, वो है इसका थर्ड, 998 होल क्यूब। 998 होल क्यूब हम लोग अब करेंगे 998 होल क्यूब। क्वेश्चन सेम टाइप का है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है। 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, फॉर्मूला आपको पता है, वही लिखना है। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। a की जगह पे 1000 क्यूब, b के जगह पे 2 का क्यूब, 3 तो 3, a के जगह पे 1000, b के जगह पे 2 और 1000 माइनस 2। अब यहाँ पे 9 0 आएंगे 1 के साथ, तो 2 4 6 8 9, 8। इसका इंटू कर लें तो 3 2 जा 6, 6000 और ये आ गया 998। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। इसका इंटू करने पे आएगा 5988, 88008 00। ट्रिपल ज़ीरो होगा क्योंकि 6000 में 3 0 है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, 2 4 6 8 9। अब ये हो जाएगा 59880008 और इसको माइनस करने से आएगा, आप माइनस करके देख सकते हो। माइनस करने पे आता है इसको 94994011992, 9940119992। तो इसका ही आंसर हुआ। ओके, और क्वेश्चंस लें। फैक्टराइज है तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। 8 का फर्स्ट 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर पे सेट है तो 2a का क्यूब कर दो प्लस b का क्यूब कर दो प्लस 3 इंटू a स्क्वायर
into b, 3a square b plus 3a b square, 3 2 जा 6 a b स्क्वायर। अब बस सीधे लिखना है 2a प्लस बी होल क्यूब। अब चाहे इसको 3 बार लिखो। ओके, तो सिमिलरली यू कैन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। ओके, just take one more question of this question number 4 number question, 64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 108 ab square। same question, same method, 4a whole cube 27, this is 3b whole cube और 144, तो 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर। एंड नाउ यू कैन राइट 4a माइनस 3b होल क्यूब। सो 4a माइनस 3b 3 times, 4a minus 3b and 4a minus 3b। Okay, this is all for today. In the next video we will meet here to do the more questions from this exercise. Thank you.